Hello friends, today we will do some questions of exercise 3C, chapter 3 trigonometry class plus 1. See, they have given us sin theta is equal to 3 by 5 where theta lies in the second quadrant. As theta lies in the second quadrant, so I have drawn here OP hypotenuse, PM perpendicular and OM is considered here as a base. Now sin theta 3 by 5 means it is sin theta is equal to is ratio of perpendicular and upon hypotenuse. Now perpendicular PM it is 3k and OP hypotenuse is equal to 5k where k is some constant of this ratio. ठीक है ना. Now OM क्या होगा? पहले तो OM हमें ये क्लियर होना चाहिए. OM x की वैल्यू है ये, इट इज अ x कोऑर्डिनेट. ठीक है ना. OM इज द लेंथ ऑफ x कोऑर्डिनेट विच लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0. तो ये नेगेटिव होता है. x डैश की तरफ x की जितनी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो हमारा जो भी OM आएगा वो नेगेटिव होगा. तो दैट इज व्हाई आई हैव प्लेस्ड अ नेगेटिव साइन. देन आई हैव अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल गिव मी 4k. तो नेगेटिव 4k मेरे पास ये आ गया. अब मेरे पास तीनों डायमेंशंस गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल की, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस. आई कैन फाइंड the different ratios. Cos theta is equal to, it's a base upon hypotenuse, means minus 4k upon 5k which is equal to minus 4 by 5, such that secant theta is equal to reciprocal of cos theta. So it is 1 upon minus 4 upon 5 which is equal to 5 upon 4, negative 5 upon 4. Okay. Now tan theta is sin theta upon cos theta, or you can say that it is perpendicular upon means you can also write here PM perpendicular, OM base means PM is 3k, OM is minus 4k, so this is minus 3 by 4. This is your tan theta. यहीं से we can find out cot theta. Cot theta is the reciprocal of tan theta. So reciprocal of tan theta means it is minus 4 by 3. You just have to interchange the numerator and denominator. Now we are left with cosecant theta. Cosecant theta is the reciprocal of sin theta. So sin theta is 3 by 5. You can write here 3 by 5 or 5 by 3. Cosecant theta is 5 by 3. This completes the question number 5. So here's the question number 1. I have considered one more question. Cos theta minus 3 by 5 theta in third quadrant. अब देखो अगर theta third quadrant में है तो C cos theta means base upon hypotenuse is given. तो OM x coordinate OM which is called base is negative because ये origin के left side पे x की वैल्यू को शो कर रहा है, that is negative. Okay. Hypotenuse you have to take always positive. तो OP is positive. Now this distance C origin के above जो y की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती है, लेकिन below origin जो भी वैल्यू आएंगे वो नेगेटिव होंगी. तो दिस इज द y कोऑर्डिनेट, वो भी हमारे पास नेगेटिव आने वाला है. दैट इज व्हाई आई हैव प्लेस्ड PM फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या है पहले ही नेगेटिव साइन बाहर लगाया है. नो आई हैव अप्लाइड हियर पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर विल गिव अस perpendicular PM. Now sin theta, what is sin theta? Sin theta is yes perpendicular upon hypotenuse means PM upon OP which is PM is minus 4k upon 5k. This is minus 4 by 5. यहीं से you can find out that cosecant theta which is the reciprocal of sin theta. तो वो आ जाएगा minus 5 by 4. Tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular means PM, base means OM. तो see minus 4k upon minus 3k will give you 4 by 3. Tan theta third quadrant में हमेशा पॉजिटिव आता है. That is why we have got here positive value.
अब कोट थीटा आप यहीं से निकाल सकते हो. इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा which is equal to 3/4. We are left with one value, secant theta. So secant theta is the reciprocal of cos theta which is equal to -5/3. This is your last ratio. So this completes your second question. Here I have considered one more question. See, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट्स, मैंने क्वाड्रेंट्स में बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में सीकेंट और कोसेकेंट पॉजिटिव होती हैं, और थर्ड में होता है टेंजेंट और कोटेंजेंट, फोर्थ में कोस और सीकेंट. मीन्स साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट एक्स, टेन और टेन का रेसिप्रोकल टेन और कोटेंजेंट इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड कोस एंड कोस का रेसिप्रोकल दैट इज सेकेंड एक्स पॉजिटिव इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये रेशियोज का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है. और फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर लाइंस है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है, राइट साइड पे पॉजिटिव. ओरिजिन के ऊपर को हमारी वाई की वैल्यू जो है अब जो है पॉजिटिव होती है, वैल्यू जितनी भी वैल्यू वाई की आएंगी वो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव शो करेंगे. नाउ सी, हमें गिवन था साइन एक्स सेकेंड एक्स इक्वल टू -1. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, दैट इज वाई आई हैव taken this question. Now I have rewrite this question. Secant x can be written like 1 upon cos theta, okay, which is sin theta upon cos theta, tan theta. tan theta, अब tan theta जब when we are talking about second quadrant, तो यहाँ पे tan theta second quadrant है और tan theta होता है perpendicular on base. तो perpendicular second quadrant में जो कि y की वैल्यू है, perpendicular is the value of y, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट. तो y कोऑर्डिनेट तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहता है, तो p हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये x कोऑर्डिनेट दिस वन OM तो वो नेगेटिव होगा. दैट इज व्हाई आई हैव एडजस्टेड -1 हियर इन द डिनोमिनेटर, ठीक है ना. नाउ हियर वी गेट PM K एंड OM वेयर K इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट व्हिच इज ग्रेटर देन 0. कांस्टेंट ऑफ रेशियो भी बोला जाता है इसे. नाउ OP हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम का, यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया. ना साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज वी गॉट हियर √2k, ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ चुका है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर PM अपॉन OP. PM is k, OP is √2k which is 1/√2. Such that you can find here value of cosecant x which is one reciprocal of sin theta. Cosecant theta is the reciprocal of sin theta. So this is √2/1. Cos theta, it is base upon hypotenuse. Base means minus k upon hypotenuse √2 and k which is -1/√2. तो यहीं से आपको सेकेंड थीटा मिल जाएगा. सेकेंड थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस मीन्स -√2. कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. अगर tan थीटा यू हैव -1 तो कोट थीटा इज ऑल्सो -1. दिस कंप्लीट्स योर थर्ड क्वेश्चन. दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3C. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में भी आए हैं और NCERT बुक के हैं ये क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं, आई हैव डिस्कस्ड हियर. तो और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं जो बोर्ड की क्लासेस में आया है. मैंने मोस्टली क्वाड्रेंट को कंसिडर करके ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं. नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज 3D. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.